Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today, I am going to take topic lecture slope deflection method with portal frame with side sway. First point, unsymmetrical loading, eccentric loading. Second, unsymmetrical outline of portal frame. Different end condition of the column of the portal frame. Non-uniform section of the member of the frame. Horizontal loading on the column of the frame. Settlement of the support of the frame. In case of portal frame with side sway, the joint translation become additional unknown quantities. Some additional condition will therefore be required for analysis the frame. The additional condition of equilibrium are obtained from the consideration of the shear force extend on the structure by the external loading. The horizontal shear extended by member is equal to the algebraic sum of moment and ends divided by length of the member. All the end moment are assumed clockwise in calculation of the horizontal reaction. On a figure, portal frame A to B column, B to C beam और C to D column. इसमें हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे. हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए कॉलम ए बी और कॉलम सी डी. तो कॉलम ए बी में हॉरिजॉन्टल फोर्स एच ए इज इक्वल टू मोमेंट ए एम ए बी प्लस मोमेंट बी ए माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इंटू स्मॉल एच डिवाइड बाय कॉलम लेंथ. और horizontal reaction HD is equal to moment CD plus moment DC plus UDL है तो W into length by 2 divide by 2. तो WL square by 2 divide by column length. For the equilibrium of the frame, summation horizontal force is equal to 0. So HA plus HD plus P minus WL2 is equal to 0. HA जो हमने रिएक्शन फाइंड आउट किया वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे MAB प्लस MBA माइनस PH डिवाइड बाय लेंथ प्लस MCD प्लस DC प्लस WL स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय लेंथ प्लस P माइनस WL2 is equal to 0. P and W is equal to 0 above equation. So MAB plus MBA divided by length of column plus MCD plus MDC divided by length of column is equal to 0. Equation 4, 5 are called shear equation. Slope deflection method में जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 फ्रिक्शन मोमेंट
Step number 2, slope deflection equation. Step number 3, equilibrium equation. Step number 4, final moment. Step number 5, bending moment calculation. Step number 6, shear force calculation. तो यहाँ पे हम एक एडिशनल स्टेप ऐड करेंगे. फर्स्ट स्टेप आएगा, सेम कैलकुलेशन करना है, फ्रिक्शन मोमेंट, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, देन shear इक्वेशन. पोर्टल फ्रेम विद साइड स्वेड में एक स्टेप ऐड होगा, shear इक्वेशन, देन फाइनल मोमेंट, देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ठीक है. one example, figure analysis the portal frame. So in figure and draw bending moment diagram using slope deflection method. पोर्टल फ्रेम विथ साइड स्वे ना एग्जांपल अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं. ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सोल्व किया वो पोर्टल फ्रेम विथ साइड स्वे नहीं था, ओनली पोर्टल फ्रेम. ठीक है. अभी हम जो सोल्व करने जा रहे हैं वो पोर्टल फ्रेम विथ साइड स्वे. तो कॉलम ए बी, बीम बी सी और कॉलम सी डी. कॉलम ए बी की लेंथ 3 मीटर और सेक्शन 2i. बीम बी सी की लेंथ 2 मीटर. यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर और कॉलम सी डी 2 मीटर. पोर्टल फ्रेम विद साइड स्वे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पोर्टल फ्रेम साइड स्वे की है कि नॉन साइड स्वे की है. ठीक है. तो फर्स्ट आपको देखना है कि लोडिंग कंडीशन कैसा है. एसेंट्रिक लोडिंग है, मतलब सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं है. सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? सब जगह सेम लोडिंग होते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं. एसेंट्रिक लोडिंग, अनसिमेट्रिकल आउटलाइन, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल आउटलाइन. और डिफरेंट एंड कंडीशन पोर्टल फ्रेम, डिफरेंट एंड कंडीशन पोर्टल फ्रेम. नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, मतलब यहाँ पे 2i दे रखा है, यहाँ पे i दे रखा है, यहाँ पे i दे रखा है, तो नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन. फिर कॉलम पे हॉरिजॉन्टल लोड हो तो भी वो साइड स्वे का एग्जांपल है. सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्रेम तो भी वो साइड स्लोप का एग्जांपल है. ठीक है. तो ये मैंने जो फर्स्ट स्लाइड में जो किया है वो आपको याद रखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि साइड स्वे का एग्जांपल है या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन मोमेंट. तो हम बात करेंगे एम ए बी जो कॉलम है, तो यहाँ पे कोई भी लोड दे नहीं रखा है तो फ्रिक्शन मोमेंट 0, एम ए बी 0, एम बी ए 0. अब हम बात कर रहे हैं बी सी की, तो बी सी पे यूडीएल दे रखा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर और स्पान है 2 मीटर. तो बी सी की फ्रिक्शन मोमेंट एम बी सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 और माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 और लेंथ है 2 मीटर, तो माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 12. तो एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर. एम एफ सी बी प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 12. एम एफ सी बी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब कॉलम सी डी की बात कर रहे हैं, तो उसमें लोडिंग नहीं है तो फ्रिक्शन मोमेंट 0 और डीसी में भी फ्रिक्शन मोमेंट 0. स्टेप नंबर सेकंड, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम यहाँ पोर्टल फ्रेम दे रखी है,
हम फिक्सेंट पे जो थीटा मिलता है वो 0 लेते हैं, ठीक है। थीटा फिक्सेंट पे 0 कंसिडर करते हैं, और स्लोप भी डेल्टा, स्लोप नहीं डेल्टा डिफ्लेक्शन, वो भी हमें यहाँ पे दिया नहीं है सिंकिंग सेटलमेंट, तो हम 0 लेते हैं। लेकिन ये साइड स्वे का एग्जांपल है, तो यहाँ से फ्रेम का डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ होगा, कॉलम में डिफ्लेक्शन आएगा, बी में रहेगा, फिर कॉलम में डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन हमें कहाँ दिखना मिलता है, तो कि कॉलम पे, यहाँ से यहाँ डेल्टा डिफ्लेक्शन, ये भी डेल्टा। तो कॉलम में डेल्टा प्रेजेंट रहेगा और बीम में डेल्टा 0 रहेगा, ठीक है। हियर देयर विल बी साइड स्वे, डेल्टा इज कंसिडर, मतलब कॉलम ए बी और कॉलम सी डी में डेल्टा प्रेजेंट, और बीम बी सी में डेल्टा 0 डिफ्लेक्शन। अभी हम कॉलम ए बी की बात कर रहे हैं। एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2EI अपॉन एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो यहाँ पे डेल्टा ए एंड ए है वो फिक्स है, मतलब थीटा थीटा ए 0। एम एफ ए बी की वैल्यू भी कोई लोडिंग नहीं है, तो 0 प्लस 2 ई इंटू 2I डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में थीटा ए 0 प्लस थीटा बी प्रेजेंट माइनस डेल्टा भी प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉलम में सेटलमेंट हो रहा है, सिंकिंग सेटलमेंट हो रहा है। तो माइनस 3 डेल्टा अपॉन लेंथ 3 मीटर। तो इक्वेशन नंबर 1 EI थीटा बी माइनस 1.33 EI डेल्टा। अब हम बी ए की बात कर रहे हैं। एम बी ए इज इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस 2EI अपॉन एल 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। एम एफ बी ए की वैल्यू 0, यहाँ पे 2EI एज इट इज, आई की जगह हमने सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे 2I दे रहा है, तो 2I डिवाइड बाई 3 लेंथ थीटा 2 थीटा प्लस थीटा ए फिक्स है 0 और डेल्टा कॉलम में प्रेजेंट रहेगा। तो 2.67 EI थीटा बी माइनस 1.33 EI डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बीम की बात कर रहे हैं बीसी। तो बीम जो हमारा फिगर है ऐसा है, अभी हमने जो बात किया ए और बी कॉलम की, अब हम बी और सी, बी और सी और डी कॉलम। तो एम बी सी इज इक्वल टू एम एफ बी सी प्लस टू ई आई अपॉन एल ब्रैकेट में 2 थीटा ए प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो सिंकिंग का असर बीम में नहीं रहता है, तो मतलब डेल्टा 0, और एम बी सी एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2EI लेंथ 2EI डिवाइड बाई लेंथ 2 मीटर 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस डेल्टा 0 is equal to minus 2 plus 2EI theta B plus EI theta C, equation number MCB is equal to MFCB plus 2EI upon L 2 theta C plus theta B minus 3 delta upon L। MCB की वैल्यू 2 है, 2EI upon L 2EI upon 2 डिवाइड into 2 theta C plus theta B minus delta 0। तो 2 प्लस 2EI थीटा सी प्लस EI थीटा बी, इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात करेंगे कॉलम की CD। एमएफ सी डी प्लस 2EI अपॉन एल 2 थीटा सी प्लस थीटा डी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो एमएफ सी डी की वैल्यू 0, 2EI अपॉन लेंथ 2 2 थीटा सी थीटा डी डेल्टा, सॉरी थीटा डी फिक्स है, मतलब डी फिक्स है, तो डेल्टा 0 नहीं, स्लोप 0, डेल्टा नहीं, डेल्टा कॉलम में प्रेजेंट रहेगा। तो 2EI थीटा सी माइनस 1.5 EI डेल्टा, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर, अब बात करेंगे एम डी सी इज इक्वल टू एम एफ डी सी प्लस 2EI अपॉन एल 2 थीटा डी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो यहाँ पे
एम एफ डी सी की वैल्यू 0, 2 ई ए अपॉन लेंथ 2 मीटर इंटू थीटा डी की वैल्यू 0 प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन 2 ई आई थीटा सी माइनस 1.5 ई आई डेल्टा। इक्वेशन नंबर 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में अब हम बात करेंगे जॉइंट की। जॉइंट बी, बी ए और बी सी, जॉइंट सी, सी बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। तो अभी बात कर रहे हैं जॉइंट बी की। तो एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। बी ए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो इक्वेशन है वो यहाँ पे पुट करना है। 2.67 ई ए थीटा बी माइनस 1.33 ई ए डेल्टा और बी सी माइनस 2 प्लस 2 ई ए थीटा बी माइनस ई ए डेल्टा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे उसे तो 4.67 ई ए थीटा बी प्लस ई ए थीटा सी माइनस 1.33 ई ए डेल्टा इज इक्वल टू 2। तो 4.67 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 1.33 डेल्टा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय ई ए, इक्वेशन नंबर ए। अब हम जॉइंट बी की बात कर रहे हैं। जॉइंट सी, एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से सी बी और सी डी का इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। 2 प्लस 2 ई आई थीटा सी प्लस ई आई डेल्टा ई आई थीटा बी प्लस 2 ई आई थीटा सी माइनस 1.5 ई आई डेल्टा इज इक्वल टू 0। कुछ हम सिंप्लीफाई करेंगे। ई आई थीटा बी प्लस 4 ई आई थीटा सी माइनस 1 ई आई डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा बी प्लस 4 थीटा सी माइनस 1.5 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई ई आई, इक्वेशन नंबर बी। अब जो नया है वो है इक्वेशन स्टेप नंबर 3 और है 4 शियर इक्वेशन। शियर इक्वेशन में क्या करना है, तो कॉलम ए बी और कॉलम बी सी में जो मूवमेंट है वो वहां पे वैल्यू पुट करना है। एम ए बी प्लस एम बी ए डिवाइड बाई लेंथ कॉलम ए बी प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ कॉलम सी डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से एम ए बी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 वो यहाँ पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पुट करना है और लेंथ ऑफ कॉलम 3 मीटर यहाँ वैल्यू रखी और सी डी इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से वैल्यू पुट करना और लेंथ 2 मीटर। तो एम ए बी इज इक्वल टू 1.33 ई आई थीटा बी माइनस 1.33 ई आई डेल्टा प्लस एम बी ए 2.67 ई आई डेल्टा ई आई थीटा बी माइनस 1.33 ई आई डेल्टा डिवाइड बाय लेंथ प्लस 2 ई आई थीटा सी माइनस 1.5 माइनस 1.5 ई आई डेल्टा प्लस ई आई थीटा सी माइनस 1.5 ई आई डेल्टा डिवाइड बाय 2। उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को तो 4 थीटा माइनस 2.66 डेल्टा डिवाइड बाय 3 थीटा सी माइनस 3 डेल्टा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 थीटा माइनस 5.32 डेल्टा प्लस 9 थीटा सी माइनस 9 डेल्टा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 8 थीटा बी प्लस 9 थीटा सी माइनस 40.32 डेल्टा इज इक्वल टू 0 डेल्टा है इक्वेशन नंबर सी। अब सॉल्विंग इक्वेशन ए बी सी बाय कैलकुलेटर, क्योंकि पूरा हम मैन्युअली सॉल्व करेंगे तो फिर से एक नया एग्जाम्पल इतना हो जाएगा, इसलिए आपको 991 कैल्शियम में से अननोन 3 में जाके तीनों इक्वेशन पुट करना है। तो आपको थीटा बी की वैल्यू 0.538 डिवाइड बाई ई है, थीटा सी की वैल्यू माइनस 0.0
0.682 डिवाइड बाय EI और डेल्टा की वैल्यू माइनस 0.128 डिवाइड बाय EI। ठीक है, थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा तीनों वैल्यू अननोन मिल गया। अब इक्वेशन फाइनल मोमेंट में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, एम ए बी इज इक्वल टू 1.33 EI थीटा बी माइनस 1.33 EI डेल्टा इज इक्वल टू 1.33 EI थीटा बी की वैल्यू 0.538 डिवाइड बाई EI माइनस 1.33 EI डेल्टा की वैल्यू माइनस 0.128 डिवाइड बाई EI कैंसल, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर एम ए बी इज इक्वल टू 0.88 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम बी ए इज इक्वल टू 2.67 EI थीटा बी माइनस 1.33 EI डेल्टा। यहाँ पे थीटा बी और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो एम बी ए इज इक्वल टू 1.61 किलो न्यूटन इंटू मीटर। EI कैंसिल। एम बी सी माइनस 2 प्लस 2 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी, तो यहाँ पे थीटा बी और थीटा सी की दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। 2 minus 2 plus 2 EI थीटा बी की वैल्यू 0.538 डिवाइड बाई EI प्लस EI माइनस 0.682 डिवाइड बाई EI कैंसल, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी सी इज इक्वल टू माइनस 1.61 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम सी बी 2 plus 2 EI थीटा सी प्लस 2 सी बी 2 plus 2 EI थीटा सी प्लस EI थीटा बी, यहाँ पे बी है माइनस 2 प्लस 2 EI थीटा सी की वैल्यू माइनस 0.682 डिवाइड बाई EI प्लस EI ब्रैकेट में 0.538 डिवाइड बाई EI, तो सी डी की वैल्यू है 1.17 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सी डी 2 EI थीटा सी माइनस 1.5 EI डेल्टा, EI थीटा सी की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो MCD is equal to minus 1.17 kilonewton into meter. MDC EI theta C minus 1.5 EI delta, तो MDC is equal to 0.049 kilonewton into meter। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में एक कॉलम दिया है, एक बीम है और एक कॉलम है, तो यहाँ पे लोडिंग है। कॉलम ए बी में कोई लोडिंग नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से 0। बी सी बी में लोडिंग दिया है सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो डब्ल्यू 6 लेंथ 2 डब्ल्यू इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये डायग्राम जो है और सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से पैराबोला आएगा, ईडीएल के हिसाब से पैराबोला 3। फिर यहाँ पे एम ए बी की जो मूवमेंट है वो मैंने यहाँ रख दी, बी ए की मूवमेंट है वो यहाँ पे, बी सी की मूवमेंट है वो यहाँ पे, सी बी की मूवमेंट वो यहाँ पे, सी डी की मूवमेंट यहाँ पे और डी सी की मूवमेंट यहाँ पे, सबको यहाँ से जोड़ दिया तो हो गया बी एम डायग्राम। ओके, थैंक यू।